Good evening. Myself Manish Chaudhary, UGC NET qualified, and in this video, we'll talk about UGC NET Education Paper 2 and Unit 1 of Paper 2 Education. So let's dive in. Educational Studies, Unit 1. Now, we start by understanding some of the uh, basic terminologies like what is philosophy, uh, we start with philosophy first of all. So, what is philosophy and what is relationship between philosophy and education? So, let's start by philosophy. So, etymologically, philosophy is derived from Greek word philos, which means love, and sophia of wisdom, which means love for wisdom. So, philosophy means love for wisdom. So, philosophy. So, philos means love, and sophia means of wisdom. So, love of wisdom can be known as philosophy. Oh, and diving deep further, so if we want to know what philosophy is, then let's understand some of the things कि जैसे प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में फिलोसफी के बारे में बोला कि फिलोसफी इज दैट लव ऑफ नॉलेज विच मेक्स अ मैन वाइज एंड लव वाइजली. So according to Plato, he mentioned in his book Republic that philosophy वो ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रेम है जिससे क्या है कि एक इंसान बुद्धिमान होता है and he loves wisely. He who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is not satisfied may also called be as a philosopher according to Plato. तो सेम बात दो चीजें प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में बोली कि पहला फिलोसफी इज दैट लव ऑफ नॉलेज. फिलोसफी वह ज्ञान का प्रेम है जिससे एक इंसान वाइज बनता है and he loves wisely. And second thing he said that he who has a taste of every sort of knowledge, वो इंसान जो हर किस्म के ज्ञान का मतलब टेस्ट रखता है एंड हु इज क्यूरियस, जो जिज्ञासु है कुछ नया सीखने के लिए और जो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, हमेशा एनालिसिस करना चाहता है थिंग्स का, फर्दर नॉलेज को और एक्वायर करना चाहता है, जानना चाहता है, हम उसको फिलोसफर बोल सकते हैं. एंड कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग philosophy is the interpretation of world in order to change it. So according to Karl Marx, philosophy is the interpretation of the world in order to change it. So Karl Marx ने बोला कि philosophy एक इंटरप्रिटेशन है वर्ल्ड का सो दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड. जेएस रोस ने बोला कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन. सो एक सिक्का है जिसके दो पहलू, दो साइड्स है, हेड एंड टेल. सो हेड एंड टेल, तो जैसे कि एक सिक्के के हम दो पहलू बोले लाइक हेड एंड टेल भी से, तो सेम उसी तरीके से फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कोइन. फिलोसफी बीइंग द contemplative side and education being the active side. और एक साइड से दूसरी साइड अपने आप इम्प्लाइड होती है. सो वन साइड इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड बाय द अनदर साइड. So summarizing, we can say that philosophy and education are two sides of the same coin, and philosophy or education are implied by each other. Philosophy being the contemplative side and education being the active side. According to Radhakrishnan, philosophy is the view of life. It gives direction to life and offers a design for living. तो राधा कृष्णन जी ने बोला कि फिलोसफी एक लाइफ का व्यू है, ये डायरेक्शन देता है लाइफ को एंड ऑफर्स डिजाइन फॉर लिविंग, और जीने के लिए एक अपने को डिजाइन ऑफर करता है. सो हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज यूनिवर्सल साइंस. So diving deep, if we want to study more, if we want to analyze more, so Herbert Spencer said philosophy is concerned with everything as a universal science, and philosophy is born out of special circumstances, specific experiences, and situations. So we can also say that philosophy special circumstances से born होती है, उदय होता है philosophy का. जिन जिन इंडिविजुअल्स ने, जिन जिन इंसानों ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस को मतलब कि फेस किया, तो उन सर्कमस्टांसेस से फिलोसफी ने, वैसा मतलब कि उन्होंने जैसे सर्कमस्टांसेस फेस किए, उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस से फिलोसफी बोर्न हुई. स्पेसिफिक उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, एक्सपीरियंसेस उनको हुए एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस से वो गुजरे. सो तीन थिंग को हम बोल दें, जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस,
तो एक इंसान, एक फिलोसफर जब इन तीन चीजों से गुजरता है, जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस से गुजरता है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस से गुजरता है एंड सिचुएशन से गुजरता है, तो वो अपना एक परसेप्शन देता है, परसेप्शन, और परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, परसेप्शन perception of the world, which we might say philosophy according to that person. सो हमने अब तक के थिंकर्स के बारे में, जैसे थिंकर्स के कुछ कोट्स देखे, उनके व्यूज को देखा, तो जो डिफरेंट थिंकर्स अलग अलग स्पेशल सर्कमस्टांसेस से गुजरे, अलग अलग स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस से गुजरे, अलग अलग सिचुएशंस से गुजरे, उन्होंने अलग अलग बातें कही. सो वी कैन ऑल्सो नाउ से दैट फिलोसफी इज बोर्न आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस. देयरफॉर डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ लाइफ. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अलग अलग पर्सन्स ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अलग अलग व्यू रखे, क्योंकि उनकी सिचुएशंस अलग थी और उनके सर्कमस्टांसेस अलग थी. Philosophy is deep pursuit of knowledge. It provides and analyzes knowledge of every discipline. Philosophy, we can also say that it is a deep pursuit of knowledge. It provides and analyzes knowledge of every discipline. हर एक डिसिप्लिन, उसके लिए जो नॉलेज कंसर्न है वो फिलोसफी प्रोवाइड करती है. और इट ऑल्सो, फिलोसफी ऑल्सो एनालाइजेस नॉलेज बेस ऑफ एवरी डिसिप्लिन. सो जो साइंटिफिक इंक्वायरी है वो क्या है कि बेस ऑफ फिलोसफी है. साइंस डील्स विद रियलिटीज ऑफ लाइफ. साइंस क्या है कि रियलिटीज ऑफ लाइफ के साथ में डील करता है. एंड नेचर, सो रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड नेचर, सो साइंस डील करते हैं इनके साथ में, एंड दिस साइंस इज द बेस ऑफ फिलोसफी. सो रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड नेचर, दैट इज प्लांट एनिमल और ह्यूमन. सो दीज रियलिटीज आर द बेस टू जनरेट नॉलेज. सो यही रियलिटीज एक बेस बनती है नॉलेज जनरेट करने के लिए. एंड फिर इनसे एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं एक चिल्ड्रन के लिए, एंड फर्दर फॉर्म देयर फिलोसफी. सो जैसे कि एक चाइल्ड जैसे जैसे आगे डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा, एक लर्नर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा, सो वो रिलेटिवली उन एक्सपीरियंसेस को फील करके, उन सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से निकल के अपनी एक फिलोसफी फॉर्म करेगा. So, philosopher is a person who, in one way or another, search for truth and reality. So we can now say that एक philosopher वो एक व्यक्ति होता है जो एक तरीके से या दूसरे तरीके से सत्य की और वास्तविकता की खोज करता है. Human beings undergoes various experiences throughout their life from birth to death. एक इंसान अपने जीवन काल में अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरता है. Such experiences provide them with new knowledge and makes an individual a philosopher. और ये जो experiences होते हैं वो उनको एक नई नॉलेज, नया ज्ञान देते हैं और वो उस व्यक्ति को एक फिलोसफर बना देते हैं. Now branches of philosophy, there are certain branches of philosophy. So first branch, we talk about metaphysics. Metaphysics is the science of what is beyond the physical. It discusses the ultimate reality, which is beyond the physical world. Metaphysics is derived from two words. Meta means after, and physics means science. So we can also say that metaphysics means after science. So metaphysics is after science. It is abstract in nature, and it may be little spiritual to realize. Now, सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिलोसफी. सो मेटाफिजिक्स की हम बात करें तो मेटाफिजिक्स बात करता है वो साइंस, या फिर मेटाफिजिक्स वो साइंस है या वो विज्ञान है जो बात करता है कि फिजिकल के बियॉन्ड क्या है. इट डिस्कसेस अल्टीमेट रियलिटी. सही मायने में वास्तविकता में सही मायने में जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, एंड फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी कुछ कोई रियलिटी है तो उसका डिस्कशन मेटाफिजिक्स करता है. सो मेटाफिजिक्स मेटा और फिजिक्स से बना है. मेटा मीन्स आफ्टर, फिजिक्स मीन्स साइंस, मीनिंग हो गया आफ्टर साइंस. ये एब्स्ट्रैक्ट है नेचर में और थोड़ा स्पिरिचुअल भी है रियलाइज करने में. सो मेटाफिजिक्स को हम बोल सकते हैं ये थ्योरी ऑफ रियलिटी है. इसमें स्पेकुलेशंस होते हैं कि हर चीज के बारे में संदेह करना, डाउट करना, क्वेश्चंस करना, फिर उनके आंसर्स गेट करना. सो इट इन्वॉल्व स्पेकुलेशन अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का एक जो एग्जिस्टेंस है, जो जिस एग्जिस्टेंस में हम रह रहे हैं, तो उसका जो नेचर है एग्जिस्टेंस का, उसके रिलेटेड क्या है कि डिफरेंट क्वेश्चंस जो एक इंसान के, एक फिलोसफर के माइंड में आते हैं. सो मेटाफिजिक्स इन्वॉल्व स्पेकुलेशन अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. मेटाफिजिक्स प्रोवाइड्स आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो जैसे कि बेसिकली तीन क्वेश्चन की बात करें हम,
सो मेटाफिजिक्स उनको आंसर करने की कोशिश करता है। इज देयर अ स्पिरिचुअल रेल्म ऑफ एग्जिस्टेंस और इज रियलिटी मटेरियल? क्या कोई आध्यात्मिक एक दुनिया है जो एग्जिस्टेंस में है, या सिर्फ जो रियल जो भौतिकतावाद जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं वही रियलिटी है या वास्तविकता है? मेटाफिजिक्स दूसरे क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करता है। इस ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? एंड तीसरा क्वेश्चन मेटाफिजिक्स पूछने की कोशिश कर रहा है, डू वी क्रिएट आवर ओन पर्पस और इज इट इनहेरेंटली पर्पसफुल बाय इट्स ओन डिजाइन? क्या एक इंसान खुद क्या है कि अपना पर्पस सेट करता है, खुद हम अपना पर्पस सेट करते हैं, खुद अपनी जिंदगी को हम पर्पसफुल बना रहे हैं, या फिर ऑलरेडी यूनिवर्स ने हमारे लिए पर्पस डिजाइन कर रखा है और उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम आगे क्या है कि चलेंगे? सो इन क्वेश्चंस की मतलब इस इन क्वेश्चंस का कंसर्न नॉलेज क्या है मेटाफिजिक्स जानने की कोशिश करेगा। सो मेटाफिजिक्स डील विद नेचर ऑफ रियलिटी एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉज कंक्लूजन। सो मेटाफिजिक्स रियलिटी का नेचर जानने की कोशिश करता है और उसी अकॉर्डिंग क्या है कि कंक्लूजन्स पे आता है। तो मेटाफिजिक्स की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है? जैसे कॉस्मोजोनी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ एंड एस्टेटोलॉजी। सो कॉस्मोजोनी मीन्स स्टडी ऑफ क्रिएशन। तो स्टडी ऑफ क्रिएशन कॉस्मोजोनी में पूछा जाता है, हु एंड हाउ वाज द वर्ल्ड क्रिएटेड? किसने संसार की रचना की, किसने संसार बनाया और संसार कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे संसार क्रिएट हुआ? कॉस्मोलॉजी, इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक इज देयर वन वर्ल्ड और मैनी? कॉस्मोलॉजी पूछता है कुछ क्वेश्चंस, क्या इट आंसर्स द क्वेश्चन लाइक इज देयर वन वर्ल्ड और मैनी? सो कॉस्मोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं क्या सिर्फ वही यूनिवर्स है, या जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं क्या वही वर्ल्ड है, या हम एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं, क्या हम मल्टीपल यूनिवर्सेस में रह रहे हैं जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है? तो इसके कंसर्न, सो यदि मल्टीपल यूनिवर्सेस हुए तो वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड कैसे है? सो उसको जैसे कि बोल दिया, कनेक्टेडनेस को जैसे कि बोल दे टोपोलॉजी क्या है यूनिवर्स की। और जैसे कि यूनिवर्स का शेप जानने की कोशिश करें, सो व्हाट इज द ग्लोबल geometry of the universe. So such type of questions are studied or answered in cosmology. Ontology, it is the study of ultimate reality. अल्टीमेट रियलिटी वास्तविकता का अध्ययन किसमें किया जाएगा? ओंटोलॉजी में। फिलोसफी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ फिलोसफिकल स्टडी फिलोसफी ऑफ सेल्फ, स्टडी ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ सेल्फ, खुद का विश्लेषण करना, खुद का एनालिसिस करना, खुद के बारे में स्टडी करना। तो और जो एनालिसिस किया जाए खुद का वो फिलोसफिकल होनी चाहिए। सो स्टडी ऑफ फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ सेल्फ कम्स अंडर फिलोसफी ऑफ सेल्फ। एंड एस्टेटोलॉजी, स्टडी अबाउट द सोल्स कंडीशन आफ्टर डेथ, स्टडी करता है आत्मा की क्या दशा होती है मृत्यु के बाद में। एस्टेटोलॉजी स्टडी अबाउट द सोल्स कंडीशन आफ्टर डेथ।